So what is event? I'm talking about JavaScript event, not any other event. So what is JavaScript event? So there are two types of event, not exactly two types, different type of event, but specially we have divided into custom event and predefined event. So custom event, what is custom event? Now you can create event in Node.js. So there is one module which is called event emitter. That is not the part of this training, but another is browser event. There are so many events you are fired through keyboard, mouse, okay, keyboard mouse, through keyboard mouse on browser or DOM element. Like, so kya kya hai events? What are the events? Especially we use click, mouse over, key press, on key press is an event, right? When you press the key, then something should be happened, right? When key up, on key up means when key dawa ke, fir when you release this, release the press, then event will be fired. So there are different type of events. You can find the details in event in internet, or might be W3 schools or other tutorials, right? But here we want to understand how event triggers on the DOM element. But when we trigger the event, how we can bind behavior to that event. What does it mean? Behavior means if you want to do something when you click or when you even fire the event, right? When you trigger the event, you want some functions to be triggered or anything to be triggered, any logic to be execute, and this logic might be you can write inside a function, and the function should be called, right? So हम ये कैसे देखेंगे कि इवेंट कैसे होता है, जो एक्चुअली ब्राउजर में इवेंट कैसे, ब्राउजर में कैसे इवेंट ट्रिगर होता है, कैसे बबल एंड कैप्चर होता है, वो मैं बताऊंगा इंटरनली ये कैसे काम करता है, राइट? ओके, so first we should learn the binding event, removing event, and event object. Three things we should learn. So till now, do you have any question, guys? Hello, am I audible? No, sir. No, sir. I am not audible. Audible, Sir, sir. you are No audible, question. sir. Sir, you are audible. Okay, means you don't have any doubt. Okay. Yes, sir. So as I explained, first we should learn. So you know what is event. Now we learn how to bind a function to that event or bind that event, and how we can trigger a function when the event triggers. Then how we can bind the event and remove the event from DOM element through our event object. Okay. Okay. So as I explained earlier that this is a DOM query, document object model API or method which is predefined already. If you want to learn DOM manipulation function just like array predefined methods, you can learn that. But these are not the again the topic of JavaScript, because to manipulate DOM there are so many library available, like jQuery, Angular, React, and there are so many ext.js, backbone.js. There are so many JS available, right? So many frameworks or library available. So core JavaScript, using core JavaScript DOM manipulation is very difficult and lengthy, but some basic method you should know, because in core JavaScript, when you write the vanilla JavaScript, core JavaScript means vanilla JavaScript without any framework, then you have to write those DOM manipulation API. So from this DOM manipulation API, I want to explain some methods. You want to just learn it. If you have to learn details in DOM manipulation API or DOM API, you can learn it from internet. Okay. So there is one function called query selector, which target to a specific DOM element inside the document. It is HTML document, and if you want to target this button, right? So you can use either get element by ID, or you can use query selector to select this button, right?
Okay, so right now I can use query selector to select the button. I can also use get element by id, right? Get element by id, and what is the id of this? My button. I can use this as also, right? So now I select this button, mean target this button, and I want to bind an event called click event, right? Bind a click event over here, and when you trigger the click event, then a function should be called. So event, I am binding this event. Again, I am associate a behavior or function which should trigger when the event will be fired. मीन्स क्लिक करोगे तो एक फंक्शन ट्रिगर होना चाहिए, वो फंक्शन को हम बिहेवियर भी बोलते, तो वो ब्राउजर या कोई मेथड में जो भी लॉजिक लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. इज इट क्लियर? सो फर्स्ट हम टारगेट करें कोई डोम एलिमेंट को, इसके बाद वो डोम एलिमेंट कौन है? बटन, इसमें स्टोर किए. Insert, it is DOM, not DOM element, it is DOM object. Okay, now it is converted to object. Now object dot method, जैसे आपने पहले से कैसे काम करते थे, डॉट कन्वेंशन से मेथड कॉल करते थे. Yes, means obj dot method name, right? So these are the predefined method which work on DOM element, DOM object. Okay, so जैसे query selector or get element by id, these two functions are used to select a DOM object, create a DOM element, target a DOM element and create a DOM object on which we can execute other one more function which is called event, add event listener. What does it mean? In name itself suggests the meaning, suggests the proper meaning, right? Means event bind कर रहा है, add bind कर, add event. So ये button को एक click event bind कर रहा है, and what it does, when you fire the event, then what happen? A method will be called, right? Just forget about this for now, and this also. Okay, so यहाँ पे क्या किया, मैंने एक मेथड बनाया और ये मेथड को कॉल किया. अब ये मेथड के अंदर बाय डिफॉल्ट जब इवेंट हम ट्रिगर करेंगे, एट दैट टाइम इट एक्सेप्ट ये मेथड, ये यू कैन राइट दिस नॉर्मल फंक्शन एज वेल, right? Like this function event, and you can remove this, not a big deal. Okay, arrow function or anonymous function, you can write the, it is a traditional way, or arrow function is the advanced way, right? Now ये कॉलबैक के अंदर जब ये फंक्शन कॉल होगा या कोई भी इवेंट ट्रिगर होता है, तो एक बाय डिफॉल्ट एक ऑब्जेक्ट पास होता है. The first parameter will be event object. You can write like anything, a b c, especially people use e only, or event, right? So ये event object यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ ये फंक्शन के अंदर. तो इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज मैं दिखाता हूँ. सो मैं कहाँ पे, ये बटन के ऊपर मैंने बाइंड किया है क्लिक इवेंट, जिसमें एक फंक्शन कॉल किया, वो फंक्शन के अंदर इवेंट प्रिंट कर रहा हूँ. जब मैं क्लिक किया तो ये इवेंट जो ई ऑब्जेक्ट है ये प्रिंट हो रहा है. देखो इसमें ऑल्ट की क्या है, जितने सारे वो एट्रीब्यूट्स वो ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी है वो दिखा रहा है. इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टी है. इसका विड्थ कितना है, हाइट कितना है, ट्विस्ट क्या है, टाइम स्टैम्प क्या है, अभी का टाइम स्टैम्प दिखा रहा है, टिल एक्स टिल वाई. ये सीएसएस प्रॉपर्टी से भी ये प्रॉपर्टी रेंडर होता है. ये डोम पूरा जब समझेंगे पढ़ेंगे उसके अंदर लिखा मेंशन किया हुआ है. नाउ यू डोंट वरी अबाउट इट. तो इसमें से ये इवेंट ऑब्जेक्ट का बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, फ्रॉम व्हिच वी शुड कंसंट्रेट ऑन टारगेट. ओके, टारगेट ऑब्जेक्ट, टारगेट प्रॉपर्टी, एंड अनदर वाज पाथ भी कभी कभी यूज होता है, ऑफसेट भी यूज होता है कभी कभी, बट वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट फॉर नाउ. टारगेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड another is event target, or what is that, type, sorry, and type is the name of the event type. Okay, event type and event target and current target, three things
ये current target, right? So what is current target and what is target? Okay, and what is event type, right? Three things is most important and most of the time we use it, and it is used always, right? So three things inside event object we have to target always. We have to use. One is target, event dot target mean event dot target. If you write event dot target, if you click on it, so target element is button. Clear? Then another one is event dot what are this? What is the other element? Type. So when you click on it, so which event type you have bind on that HTML DOM element or DOM object or button, it will be print over here, right? So if you want to print the whole event, the object, then you can see the whole object has been printed over here. Clear? So आपको पता चला कि ये event कैसे bind करते हैं and how we can bind a event as well as call a function when trigger event will be triggered. Clear? यहाँ तो कोई डाउट है? हेलो? No, sir. No, sir. Okay. No, sir. तो कितना भी क्लिक करोगे, ये ऐसे प्रिंट होता जाएगा. मैं जितना क्लिक करूंगा इतनी बार वो फंक्शन कॉल होगा क्योंकि इवेंट इसमें बाइंड है ऑलरेडी, राइट? नाउ मैं क्या यहाँ पे क्या किया, एक फंक्शन एनोनिमस फंक्शन, बट ये एक्सटर्नल फंक्शन बनाया and I just call it over here. I maybe use some named function like this, right? And call this, it will also work, right? Or might be anonymous function which I can store it in a variable just like this, right? Or I can use arrow function as well for in case of anonymous function I can use this. Okay, so मैं name एक function call किया जो यहाँ पे define किया हुआ है, name as a name function call किया मैंने, right? मैं direct ऐसे भी call कर सकता हूँ like this. If I remove this one, name function call नहीं करेगा, direct ये anonymous function suppose करना है, so I can write something like this. Can I do this? Yes, of course I can do this. So you can see if I click on this, you can see arrow function is called. I have mentioned over here arrow function is called. तो ऐसे भी कोई भी मेथड डायरेक्टली इसके अंदर हम anonymous function लिख सकते हैं which will be trigger when this event will be trigger. Clear? But this way is not the right way. Why? I will let you know. Okay, अब इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है? And let me open this one. अब और एक फंक्शन है, जैसे हम इवेंट को बाइंड करने के लिए, इवेंट को बाइंड करने के लिए we use add event listener method to remove event, clear the event binding को remove करने के लिए, event को remove करने के लिए from that DOM object we can use remove event listener. जैसे add event listener है, ऐसे remove event listener. तो मैं यहाँ पे क्या किया कि 2 सेकंड के बाद या 3 सेकंड के बाद, फॉर एग्जांपल 200 मिलीसेकंड मींस 2 सेकंड और 300 millisecond means 3 seconds. So after 3 seconds, I am remove this event from this DOM element or DOM object. So जैसे remove करूंगा तो क्या होगा, अब मैं क्लिक किया, चल रहा है, अब नहीं चल रहा है. Did you see it? I am clicking, but still it is not working because this event has been removed. After 3 seconds, I am removing this what event, click event अभी वहां पे नहीं है. Clear? So event कैसे bind करते and even event remove करते, you understand? Yes, sir.
और इवेंट ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीज, बहुत सारे ऑब्जेक्ट आता है उसमें। बाय डिफॉल्ट जब इवेंट ट्रिगर होता है, so the callback or the event binding method, the method you bind which supposed to be triggered when event is triggered, supposed to be called when event is triggered, accept that event object as a first parameter, right? तो इवेंट ऑब्जेक्ट समझ गए, इवेंट को बाइंड कैसे करते हैं एंड एक मेथड को वो इवेंट ट्रिगर के टाइम कॉल कैसे करते हैं। इज इट क्लियर? ओके, अब मैं और एक चीज दिखाता हूँ। अब सपोज मैं इस तरीके से लिखा, आई एम नॉट यूजिंग एनी नेम्ड फंक्शन, ये नेम था फंक्शन का नेम, कहीं पे स्टोर किया क्योंकि वेरिएबल में स्टोर करके रखा उसका नाम, वो फंक्शन। तो मैं यहाँ पे कॉल करता, रिमूव कर दिया तो रिमूव हो गया। So if I am using this something like this and I want to remove this in the same way, देखो सेम फंक्शन यहाँ पे भी जो लिखा हुआ है यहाँ पे भी सेम वही लिखा हुआ है, yes or no, right? So 2 सेकंड के 3 सेकंड बाद ये इवेंट रिमूव हो जाना चाहिए, yes or no? Let's see, देखो ये रिमूव नहीं होता, देखो 6 7 10 ये चलता ही रहता है। Why this is so? आप ऐसे लिखो और एनोनिमस फंक्शन डायरेक्टली भी लिख सकते हो, राइट दिस लाइक दिस, राइट? और इसको कॉपी किया स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड पुट इट ओवर हियर, राइट? तो ये काम नहीं करता है, ये रिमूव नहीं होता इंसर्ट, देखो ये चलता ही रहता है 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड हो गया, बट स्टिल दिस इवेंट it cannot remove this click event and remove this function as well। क्यों अनबाइंड क्यों नहीं कर पाता है, कोई बता सकता है? Can anybody explain why? Because function, object, array, these are reference type, and when you define an array or object with same value, do you think they are same? No, because they created in different memory location with different क्या ऑब्जेक्ट। मैंने बताया था आपको, दो ऑब्जेक्ट सेम है, दो एरे सेम है, बट दे आर नॉट इक्वल। व्हाई? बिकॉज दे आर सेपरेट एंटिटी स्टोर इन डिफरेंट मेमोरी लोकेशन, बताया था मैंने। सेम इन केस ऑफ फंक्शन एज वेल, जैसे ये फंक्शन मैंने लिखा, कोई भी फंक्शन बनाया ABC, सेम फंक्शन दूसरी बार बनाऊंगा तो इट विल बी स्टोर इन डिफरेंट प्लेस, not in the correct not, they are not same, right? Because function is also function, class, array, object, these are not primitive data type, they are reference data type, so they will store in different memory locations, so we cannot, they are not same, right? Clear? Yes, sir. so ये जो फंक्शन है और ये फंक्शन दोनों सेम नहीं है, so if I want to remove this from here like this, it will not remove the same which I at the time of I am binding this, right? yes or no? Yes, sir. देखो मैं बताता हूँ, लेट a इक्वल टू एक फंक्शन, एरो फंक्शन लिखता हूँ, ये फंक्शन एरो फंक्शन हो या कोई एनोनिमस फंक्शन, यहाँ पे स्टोर किया, सेम इसको उठाया, इसको b में स्टोर किया, ओके? console.log a इक्वल टू b, ठीक है? कंसोल में देखते हैं क्या है, फॉल्स है, क्यों? याद करो, मैं यहाँ पे फंक्शन की केस में मैंने ऑब्जेक्ट रखा था और एरे रखा था, याद है? ये एक एम्प्टी एरे रखा, दूसरा यहाँ पे भी एक एम्प्टी एरे रखूंगा, तो क्या होगा ये? डू यू थिंक दे बोथ विल बी सेम? नेवर।
in case of object also. समझ में आया? फंक्शन या ऑब्जेक्ट या एरे कुछ भी अपने दो वेरिएबल में सेम फंक्शन या सेम स्टोर करेंगे, बट दे आर नॉट एक्चुअली सेम बिकॉज दे स्टोर इन डिफरेंट मेमोरी लोकेशन. मैं ये एरे ऑब्जेक्ट के केस में एक्सप्लेन किया था, सेम केस अप्लाइड टू दिस फंक्शन एज वेल, राइट? सो दे आर नॉट सेम फंक्शन. दोनों की लॉजिक सेम हो सकता है, सब कुछ सेम हो सकता है, बट दे आर नॉट एग्जैक्टली सेम फंक्शन, दे आर डिफरेंट फंक्शन. So the function I am binding over here is completely different than I am removing over here. That's why the binding event is not the binding function. Binding function is not removed here. Clear? If you want to store it in a variable and you want to call that variable over here and remove that here simultaneously, then it will work because the primitive type, it is right now, it is stored in a primitive data type, right? बट हियर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मतलब ये मेमोरी लोकेशन में डायरेक्ट स्टोर हो रहा है, एंड यहाँ पे सब ऐसे सेम लिख रहा हूँ, तो इट विल स्टोर इन अनदर मेमोरी लोकेशन व्हिच इज कंप्लीटली डिफरेंट देन द प्रीवियस वन. क्लियर? कोई डाउट है तो पूछो. एनी डाउट? नहीं. तो जब भी रिमूव करोगे इवेंट लिसनर, तो यू देयर मस्ट बी, that must be stored in a variable, might be anonymous function, but it should store in a variable or primitive type, or might be a named function. Named function कैसे लिखते? Like this: function, then function name, then something like this, है ना? Now you can bind this event and remove this event. Clear? Okay, now you can see it is working. Now it is not working because this same function I am removing, and if I am calling the named function, or might be a function stored in a variable as a primitive data type, as a primitive variable. Variable is what? Constant is data type, primitive, right? So वहां पे क्या आता है, वो named function हो या primitive में store हो कोई anonymous function, तो उसको हम remove कर सकते हैं, but directly ऐसे लिखेंगे तो they will store in different memory location, they are different. Clear? Okay, let's move to the next topic. Before understanding prevent default, so what does it means? So मैंने आपको एक example दिखाता हूँ. यहाँ पे I'm just using one form over here. Did you see it? Right? Yes. Okay. अभी देखो मैं एक काम कर रहा हूँ. जब ये इसमें सबमिट करता हो ना, तो क्या होता है, ये सबमिट हो जाता है, रिफ्रेश हो रहा है ना? तो ये क्या है? इट इज द डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ HTML एलिमेंट. ये जो फॉर्म के अंदर कोई सबमिट बटन में क्लिक करते हैं, इफ यू वांट टू क्लिक ऑन एनी सबमिट बटन इनसाइड ए फॉर्म, देन व्हाट इट विल डू, इट विल जस्ट रीडायरेक्ट, और एक्शन में जो भी पाथ रखे होंगे वहां पे रीडायरेक्ट हो जाता है. जैसे मैं यहाँ पे रखता हूँ https डॉट, सॉरी, तो ये क्या करेगा, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये google.com में रीडायरेक्ट हो जाएगा. हो गया? This Yes, is the sir. default behavior of HTML. So if you want to stop this default behavior of element, we can use one function which is called prevent default. What is the function name? Prevent default. Prevent. So let's write some code over here. So again I am targeting or selecting the form. Okay, then I am add event listener submit. वहां पे submit event मैंने bind किया, but ये prevent नहीं करता हूँ. Then it, what it will do, now it will redirect to where? It will Google. redirect to the action, which path we have put, we have already put over there in action. Clear? Look, redirect हो गया.
तो कुछ भी सपोज हमें कंसोल में आई वांट टू सी समथिंग इनसाइड द कंसोल बाय क्लिकिंग ऑन इट, देखो आया फिर रिमूव हो गया, क्यों? क्योंकि ये पेज दूसरे पेज में रिडायरेक्ट हो जाता है। बट इफ आई वांट टू स्टॉप दिस default behavior of HTML element, then I have to use prevent default method, which usually work on event object by default. तो submit is also an event. So इसको मैं ये event को suppose stop करना चाहता हूँ, ये जो submit जो default behavior of form element I want to protect them, then I can use prevent default, means default behavior को ये prevent करता है, it prevents the default behavior of HTML element. Now you can see if I click on this, it will not redirect. Did you see? कितनी बार क्लिक करना करो ये यहीं पे प्रिंट होगा, बट इट विल नॉट रिडायरेक्ट टू वेयर। ये प्रिंट हो रहा है बट वो डिफॉल्ट बिहेवियर को प्रिवेंट कर दिया, अभी वो सबमिट करने नहीं दे रहा है। सो प्रिवेंट डिफॉल्ट, व्हाई प्रिवेंट डिफॉल्ट इज यूज्ड? प्रिवेंट डिफॉल्ट इज यूज्ड टू prohibit or stop the default behavior of HTML element. जहां पे भी HTML, बहुत सारे HTML एलिमेंट की कुछ डिफॉल्ट बिहेवियर होता है, जैसे फॉर्म सबमिट करना है ना, तो वो भी एक डिफॉल्ट बिहेवियर है, राइट? तो इसको हम स्टॉप कर सकते हैं, वी कैन स्टॉप दैट यूजिंग प्रिवेंट डिफॉल्ट। ये मेथड का याद रखना, इन इंटरव्यू दे विल आस्क व्हाई प्रिवेंट डिफॉल्ट इज यूज्ड और हाउ कैन वी प्रोटेक्ट और स्टॉप द डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ HTML एलिमेंट्स। खाली यही नहीं, बहुत सारे डिफॉल्ट बिहेवियर HTML एलिमेंट का होगा जो आपको स्टॉप करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका जो फंक्शन वो कोई काम नहीं करेगा, इट विल जस्ट रिडायरेक्ट टू अदर पेज। क्लियर? नाउ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैप्चरिंग एंड बबलिंग फेजेस। ये क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना इसको। अब ये डायग्राम देखो पहले, इज इट विजिबल? Yes, जो sir. ब्राउजर में इंटरनली व्हेन यू क्लिक ऑन एनी HTML element, any DOM object or HTML element, DOM element, then दो चीज होता है, one is event capturing and another is event bobbling. तो ये किसको बोलते हैं? Event capturing is nothing but whenever you click on an element, might be innermost element, then event spatially propagate मतलब move करता है from the topmost element to the inner element where you click. Again it propagate from innermost element to outermost element, which is called bubbling. फर्स्ट क्या होगा, वो कैप्चरिंग होगा, नेक्स्ट क्या होगा, ये बबलिंग होगा। सो जब बटन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, अल्टीमेटली होगा क्या, द इवेंट, दिस इवेंट विल प्रोपागेट फ्रॉम, प्रोपागेट मतलब ट्रैवल करके आएगा, कहां से? फ्रॉम HTML एलिमेंट। यहाँ पे सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या है? HTML, राइट? HTML एलिमेंट से ये प्रोपागेट करके बॉडी सेक्शन दिस देन बटन यहाँ पर पहुंचेगा, राइट? अगेन ये क्या करेगा, बटन से अगेन HTML तक वापस जाता है वो, ये सुनो। तो जब कोई भी एक्शन, कोई भी इवेंट ट्रिगर करते हो, जैसे ट्रिगर होता है तो इवेंट कैप्चरिंग एंड बबलिंग बोथ विल बी हैपेंड, राइट? बट वी कैन ऑल्सो stop this propagation. There is also a method, stop propagation method, by which we can stop the event propagation. So interview question will be here, like what is event capturing and bubbling and how it works. So you can definitely explain. Event capturing means whenever you click on any HTML element, the event, specific event, any event you are binding over there, then event can start propagating from a topmost element to innermost element where you clicked, and again it move from innermost element to outermost element, topmost matlab outermost element, then it is called bubbling.
when it is propagate from outermost element to innermost element, it is called capturing, like this. And when it is moved from innermost element to outermost element, it is called bubbling. Clear? So कोई भी इवेंट हम क्लिक करते तो ये इंटरनली इतना सारा प्रोसेस होता ही है, बट हमको नहीं पता चलता. जैसे मैंने ऊपर इवेंट बाइंड किया, आपको पता नहीं चला कि कहाँ बबलिंग कहाँ कैप्चरिंग हुआ, जो एक्सप्लेन करूंगा मैं, राइट. बट ये इवेंट बबलिंग एंड कैप्चरिंग को हम स्टॉप कर सकते हैं यूजिंग दिस मेथड. आई विल एक्सप्लेन. सो बबलिंग कैप्चरिंग के ऊपर कोई डाउट है आप लोगों की? इवेंट बबलिंग किसको बोलते हैं, कैप्चरिंग किसको बोलते हैं? इज इट क्लियर नाउ? हेलो, Yes, sir. राइट. Sir. ओके. सो जैसे मैंने अभी बताया, जैसे तुम इसके ऊपर क्लिक बटन के ऊपर क्लिक करोगे, देन व्हाट हैपन, पहले कैप्चरिंग होता है. कैप्चरिंग ट्रिगर्ड फर्स्ट, देन बबलिंग. मींस आउटर मोस्ट एलिमेंट होगा HTML, देन दिस इज सेक्शन, ये ब्लू एरिया दिख रहा है, दिस इज सेक्शन ब्लू एरिया, देन द ऑरेंज एरिया इज द div1 element, then button is inside it, right. So HTML में आप देखोगे तो मैं पहले ये बटन दिख रहा है, इसके ऊपर क्या दिख रहा है, div एलिमेंट दिख रहा है, इसके ऊपर सेक्शन दिख रहा है, इसके ऊपर बॉडी दिख रहा है, इसके ऊपर फिर HTML दिख रहा है. yes or no? Yes, sir. तो बॉडी में सपोज मैंने एक काम करता हूँ, बॉडी का कलर चेंज कर देता हूँ एंड HTML का कलर चेंज कर देता हूँ. कहाँ से चेंज करूंगा मैं? CSS फाइल से. कौन सी कलर डालूंगा बोलो? बॉडी टैग को कौन सी कलर डालूंगा? रेड, ब्लू, पर्पल, वायलेट, ब्लू वायलेट. ठीक है. इसके अंदर और एक है उसके ऊपर और एक है HTML टैग. ये दोनों सेम है, सॉरी, बट इसमें भी मैं बैकग्राउंड कलर डाल दूंगा. कौन सी कलर डालना है कोई तो बताओ यार. Chocolate. चॉकलेट नहीं है, ये कलर आया कुछ. ठीक है. बट इसमें मैं एक काम करता हूँ, बॉडी में पेडिंग दे देता हूँ, मार्जिन पेडिंग दे देता हूँ, तो तुमको पता चलेगा. बॉडी में पेडिंग नहीं देता है. So PA. क्या बोल रहे हो? ठीक है, 20 पिक्सल मैंने पेडिंग दे दिया तो आपको पता चलेगा. देखो अभी ये चेंज हो जाएगा, दिख रहा है? अरे बॉडी में नहीं डालना है यार, HTML में डालना है. सेक्शन with this padding 40, deep padding 40, longer with this. Okay, now it is pretty clear. So now the outermost element, you can see the blue color over here is a HTML. Then inside this purple is what? Body. Is the body tag.
this blue fluorescent, what is this? This blue is section. Section. This is what? Div. Div, and this is button. ठीक है? So let me comment this out. This form. Let me comment this form out so that it is pretty clear. Okay. ठीक है? Now let's see the code. किस तरीके से काम कर रहा है. तो यहाँ पे I am selecting 3 elements, section, div and sorry, button, the div and section. Okay. If you want to use body over here, also you can write. Right. बट हम ये तीनों रखते, बट ये सेक्शन की जगह में सेक्शन रखते या बटन, ये ठीक है. सेक्शन की जगह में मैंने बॉडी कर देता हूँ. बॉडी टैग, तो क्वेरी सिलेक्टर बॉडी. ओके. एंड क्लिक ऑन सेक्शन की जगह में मैंने बॉडी कर देता हूँ, तो क्लियर होगा आपको. ठीक है. ओके. अब मैं क्या किया, अभी 3 सिलेक्टर है यहाँ पे. आई एम जस्ट टारगेटिंग दिस 3 एलिमेंट्स ऑफ HTML लाइक बॉडी टैग, div टैग एंड बटन. सो बॉडी इज टॉप मोस्ट एलिमेंट फॉर नाउ. जितना भी सिलेक्ट किया एलिमेंट, इसमें से टॉप मोस्ट एलिमेंट इज बॉडी, देन div, देन बटन. ओके. सेक्शन का मैं नहीं ले रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल. ओके. एंड हर एक जो ऑब्जेक्ट, डोम ऑब्जेक्ट मैंने और डोम एलिमेंट यहाँ पे सिलेक्ट किया, उसके ऊपर क्लिक इवेंट बाइंड किया और वहां पे 3 मेथड और बिहेवियर भी बाइंड किया, सब में अलग अलग. क्लियर. अब मैंने बोला था आपको कि जैसे मैंने कुछ करूंगा, इवेंट ट्रिगर करूंगा, तो क्या होगा, प्रोपागेट होगा. कौन सी प्रोपागेशन पहले होगा, कैप्चरिंग देन बबलिंग. राइट. तो पहले देखते हैं, मैं जैसे क्लिक करता हूँ यहाँ पे क्या प्रिंट करते हैं, ये क्या प्रिंट करता है. जैसे मैं बटन में क्लिक करूंगा तो कैप्चरिंग पहले होगा. तो जैसे कैप्चरिंग होगा, ये हर एक एलिमेंट में जहां जहां पे इवेंट बाइंड होगा और उसके अंदर जो भी फंक्शन के अंदर लिखा वो प्रिंट कर, वो एग्जीक्यूट करते करते आएगा. तो जैसे मैं बटन में क्लिक करूंगा तो पहले कौन सी फंक्शन कॉल होगा कैप्चरिंग में, ना बॉडी टैग, इसमें इवेंट बाइंड है, तो उसके अंदर बॉडी टैग के अंदर जो भी फंक्शन कॉल किया हुआ है वो एग्जीक्यूट पहले होगा. राइट. Let's stop propagation code needs to be, और ये भी बंद कर देता हूँ. इवेंट ऑब्जेक्ट तो समझ गया हम. आई डोंट वांट दिस. तो ये क्या होगा, ये कंसोल प्रिंट करेगा. तो पहले बॉडी टैग प्रिंट करना चाहिए, देन div, देन दिस. ओके. बट ये ऐसे प्रिंट नहीं करेगा. देखो क्या हो रहा है, मैं जैसे क्लिक किया, 2 बार क्लिक हो गया, तो पहले बटन क्लिक दिख रहा है, फिर div, फिर बॉडी, जो उल्टा खाली बबलिंग दिख रहा है. क्यों? बिकॉज ये जो इवेंट लिसनर है, इसमें एक सेकेंड पैरामीटर होता है. सेकेंड पैरामीटर क्या काम करता है, बाय डिफॉल्ट दिस सेकेंड पैरामीटर्स का जो वैल्यू है वो, ये दिस सेकेंड पैरामीटर इज ट्रू और फॉल्स. सो व्हाट डज इट मीन, ये क्या बोलता है कि इवेंट लिसनर के अंदर जब बबलिंग होगा, उसको बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स रखा हुआ है ब्राउजर के अंदर. बाय डिफॉल्ट ये क्या है, फॉल्स. मीन्स what does it mean, now according to our theory, the event should propagate from top to bottom, or capturing should be triggered first, then bubbling should be what, then bubbling will be triggered. तो यहाँ पे कैप्चरिंग काम क्यों नहीं किया, बबलिंग क्यों काम किया. तो अल्टीमेटली जो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कैप्चरिंग के टाइम में कोई फंक्शन कॉल नहीं हुआ, बट बबलिंग के टाइम में कॉल हुआ. बबलिंग मतलब जब नीचे से ऊपर गया, मतलब बटन के ऊपर पहले कॉल हुआ, फिर div के ऊपर, फिर HTML के ऊपर हुआ. यस और नो.
राइट। तो क्यों हुआ? क्योंकि ब्राउजर में बाय डिफॉल्ट इवेंट कैप्चरिंग फॉल्स रखा हुआ, मींस कैप्चरिंग के टाइम में कोई भी इवेंट कॉल नहीं होता है। क्लियर? सो मैं फोर्सफुली इसको ट्रू करूंगा तो मेरे फंक्शन अकॉर्डिंग टू इट विल वर्क। लुक, पहले बॉडी, देन डीप, देन बटन। इज इट क्लियर? नहीं समझ में आया? पहले तो ये समझो, मैंने 3 इवेंट बाइंड किया, एक बटन के ऊपर, एक div के ऊपर और एक HTML के ऊपर, राइट। तो जैसे मैं इनर मोस्ट एलिमेंट में क्लिक करूंगा, देन व्हाट हैपन? क्या होगा? इवेंट कैप्चरिंग Capturing. होगा। सो कैप्चरिंग बाय डिफॉल्ट फॉल्स रखी हुई होती है ब्राउजर में, दैट्स व्हाई कैप्चरिंग में कोई भी फंक्शन कॉल नहीं होता, राइट। बट जो बबलिंग होता है, बबलिंग मतलब यहाँ से टॉप इनर मोस्ट से आउटर मोस्ट में ट्रैवल करता है जो तुम्हारा इवेंट। तो जहां जहां पे भी इवेंट बाइंड किया हुआ है और जो भी फंक्शन बाइंड किया हुआ है, इट विल बी ट्रिगर्ड, राइट। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है? बबलिंग काम करता है। बट जैसे मैंने कैप्चरिंग को ट्रू कर दिया फोर्सफुली, देन कैप्चरिंग के टाइम तुम्हारा फंक्शन कॉल होगा अभी, राइट। तो मैंने क्या किया कि जैसे क्लिक किया, पहले बॉडी टेक, कैप्चरिंग स्टार्ट हुआ फ्रॉम द टॉप मोस्ट एलिमेंट। टॉप मोस्ट एलिमेंट इज HTML, ये ब्लू वाला, बट वहां पे कोई इवेंट मैंने बाइंड नहीं किया तो वहां पे कुछ भी कॉल नहीं हुआ। देन बॉडी टैग में वो चेक किया, बॉडी में क्या हुआ ना, हाँ इवेंट बाइंड किया हुआ है और इसमें कुछ प्रिंट कर रहा हूँ, क्लिक बॉडी, ये प्रिंट हो गया। देन वो सेक्शन के अंदर आएगा, वहां पे कुछ नहीं होगा, कोई इवेंट बाइंड नहीं किया। देन डिव के अंदर आएगा, तो डिव के अंदर इवेंट बाइंड किया हुआ तो वो प्रिंट करेगा। देन ये अल्टीमेटली पहुंचेगा जहां पे तुम क्लिक किए थे, इनर मोस्ट एलिमेंट कौन सा? बटन। तो बटन प्रिंट करेगा। तो जो कैप्चरिंग ट्रू किया हुआ है, देन बबलिंग के टाइम में वो प्रिंट नहीं करेगा। देन ओनली वंस द फंक्शन विल बी, द बाइंडेड फंक्शन विल बी कॉल्ड, रिमेंबर। क्लियर? ओनली वन टाइम कॉल होगा, आइदर एट द टाइम ऑफ कैप्चरिंग और एट द टाइम ऑफ प्रोपागेशन, सॉरी बबलिंग। सो प्रोपागेशन, कैप्चरिंग एंड बबलिंग दोनों होता है, बट it will, the function you binded over there will be called only once, and it will be controlled by this parameter, true or false. If it is true, then capturing is enabled, means at the time of capturing this function will be called. If it is false, then at the time of capturing it will not called it, at the time of bubbling it will call. So मैं body tag के tag में क्या कर रहा हूँ, इसको false कर दे रहा हूँ. What does it mean? So this function will be binded over there, but it will call at the time of bubbling. Capturing false. This parameter is used for capturing true or capturing false. So capturing false means capturing के time में it will not call. Function will not call. Right? So this function will call at the time of bubbling. Then what will be the output? Let's see. जैसे मैंने क्लिक किया, पहले div कॉल प्रिंट हुआ, फिर बटन प्रिंट हुआ, फिर बॉडी प्रिंट हुआ. Why this happen? So try to understand. Try to understand the code. So मैं बॉडी में क्या किया हुआ है? कैप्चरिंग फॉल्स किया, मतलब बबलिंग के टाइम में ये कॉल होने के लिए बोला मैंने। बाकी दोनों ऊपर जो डिव है और बटन है, उसको मैंने बोला कि कैप्चरिंग के टाइम में ट्रू किया हुआ है, मतलब जब कैप्चरिंग स्टार्ट होगा तो वो प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो कैप्चरिंग ट्रू डिव में भी है, बटन में भी है। तो जैसे कैप्चरिंग मैंने क्लिक किया तो इवेंट स्टार्ट प्रोपेगेटिंग फ्रॉम HTML, वहां पे कोई इवेंट नहीं है। देन दिस इज बॉडी, द पर्पल इज बॉडी, वहां पे इवेंट बाइंड है, बट मैंने वहां पे क्या किया, आई फोर्सफुली आस्क हिम टू कैप्चर द इवेंट, सॉरी ट्रिगर द फंक्शन एट द टाइम ऑफ बबलिंग। तो ये कैप्चरिंग के टाइम में कॉल नहीं हुआ, दैट्स व्हाई बॉडी इज नॉट प्रिंटिंग राइट नाउ। इसके बाद सेक्शन पे पहुंचा, तो सेक्शन में क्या देखेगा वो कि नथिंग इज, वहां सेक्शन में कोई इवेंट बाइंड नहीं हुआ है, तो वहां पे कुछ नहीं किया। देन पहुंचा डीप में, तो डीप में जब पहुंचा, सो इट विल प्रिंट, बिकॉज इन डीप आई एम फोर्सफुली क्या लिखा हुआ है डीप में, कैप्चरिंग के टाइम में इट विल द फंक्शन शुड बी कॉल्ड, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। क्लियर? तो कैप्चरिंग के टाइम पे डीप प्रिंट हो गया। इसके बाद पहुंचा बटन, बटन में भी क्या रखा, कैप्चरिंग के टाइम में प्रिंट करना है। तो कैप्चरिंग कंप्लीट हुआ, HTML to स्टार्ट होकर बटन तक पहुंच गया।
अभी जहां जहां पे मैंने फंक्शन कॉल किया हुआ है और जो फ्लैग सेट किया हुआ है कैप्चरिंग के टाइम है बबलिंग के टाइम है वो कॉल कर दिया उसने, देन ये स्टार्ट बबलिंग अगेन फ्रॉम हियर टू टॉप आउटर मोस्ट एलिमेंट। तो बटन से फिर वो कहाँ जाएगा, डीप में। तो डीप में तो मैंने पहले बोल दिया था कि ये कैप्चरिंग के टाइम में वो प्रिंट करेगा, तो कर दिया। तो बबलिंग के टाइम में कुछ नहीं होने वाला है, सेक्शन में है नहीं। अब बॉडी टैग पहुंचा, बॉडी टैग में देखा इवेंट बाइंड किया हुआ है, फंक्शन बाइंड किया हुआ है, राइट। बट वहां पे दिया है बबलिंग के टाइम में प्रिंट करना है, तो ये बॉडी टैग तब प्रिंट किया उसने, राइट। उसके बाद फिर HTML के पास पहुंच गया। क्लियर, समझ में आया कैसे काम कर रहा है ये? Yes, sir. अब इसमें मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग जवाब दोगे। अभी लिखा हुआ है तो आपको क्लियरली पता चलेगा। दिस इज माय पेज, लेट मी कमेंट इट आउट। सो ये बॉडी टैग बाहर वाला HTML टैग है, ये बॉडी टैग, ये सेक्शन टैग, ये डीप टैग एंड ये बटन है। ठीक है, अभी क्लियर पिक्चर है। अब मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर। मैं क्या किया, इसको फॉल्स कर दिया, इसको भी फॉल्स कर दिया और इसको बीच वाले को ट्रू कर दिया। ध्यान से देखो कोड, you can see the code carefully. Is it visible now or it is very small? So visible. Visible, okay. So understand, check it, check the code. So बटन को मैंने फॉल्स किया, मतलब कैप्चरिंग फॉल्स, तो ये बबलिंग के टाइम कैप्चर होगा। बॉडी टैग को कैप्चरिंग के टाइम ट्रू किया, मींस कैप्चरिंग के टाइम ये कॉल होगा बॉडी टैग। एंड डीप टैग अगेन फॉल्स किया कैप्चरिंग के टाइम, मींस बबलिंग के टाइम। सो दिस इज कैप्चरिंग के टाइम कॉल होगा, दिस इज बबलिंग के टाइम कॉल होगा, अगेन दिस इज आल्सो बबलिंग के टाइम कॉल होगा, राइट। तो मुझे आउटपुट बताना मैं जब क्लिक करूंगा। अभी देख लो, मैं बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, राइट। तो मुझे आउटपुट क्या आएगा, मुझे अभी से बता दो। सब पहले click body Body. show होगा and after that div and after that button. पहले क्या होगा, क्लिक बॉडी, देन Click आफ्टर, body, हाँ देन, click div हाँ and then click button. No sir, पहले click body and click button and then click div. समझा नहीं मैंने, पहले ये कैप्चर में फॉल्स किया हुआ है तो ये क्लिक बॉडी नहीं हाँ, होगा। no sir, click body पहले कॉल होगा ना, कैप्चर ट्रू है ना उसका। हाँ कैप्चर ट्रू बॉडी में रखा हुआ है तो वो कॉल होगा। हाँ हाँ तो पहले क्लिक बॉडी कॉल होगा, पह- आफ्टर दैट क्लिक बटन कॉल होगा, हाँ क्योंकि क्यों, बबलिंग में नीचे से पहले ऊपर आएगा, वो। हाँ हाँ। हाँ, इसलिए बटन एंड आफ्टर दैट div कॉल। राइट, बॉडी बटन एंड डी कैसे हुआ पता चला सबको? Yes, यस सर। sir. It's pretty simple, right? But need to understand clearly, then you can answer to any question. कभी कभी होता है क्या इसमें प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत सारे जगह में हम इवेंट बाइंड करते हैं, यस और नो, करते कि नहीं करते? Yeah. फिर हमको Yes, नहीं sir. पता चलता है कि वो भी ट्रिगर हो जाता है, ये भी ट्रिगर हो जाता है, कैसे करना है फिर, है ना। देखो, आपको ये डाउट कभी होता होगा, जैसे मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये सेक्शन भी कॉल हो जाता है, बॉडी भी कॉल हो जाता है, डीप भी कॉल हो जाता है, ऐसे कैसे होता है? अल्टीमेटली ऐसे ही हो रहा है ना। तो हमको पता नहीं चलता कि ये कैसे कॉल हो जाता है। मैंने तो क्लिक किया बटन के ऊपर, बट वो डीप क्यों कॉल हो गया, डीप के अंदर जो फंक्शन वो क्यों कॉल हो रहा है, राइट। बट इसके अंदर द थियोरी समथिंग लाइक कैप्चरिंग एंड बबलिंग, ये क्लियर है। अब कोड तो यस आपको सर। पता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अभी सपोज मैं डीप में क्लिक कर रहा हूँ,
देन क्या प्रिंट करेगा मुझे बताओ। अभी बटन पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ, डीव में क्लिक कर रहा हूँ, देन आउटपुट क्या आएगा? इवेंट कैप्चरिंग स्टार्ट होगा कहाँ से? बटन पे क्लिक करूंगा तो वो HTML से स्टार्ट होगा, बॉडी सेक्शन एंड डीप तक आएगा, अगेन वो ऊपर चला जाएगा, बटन तक जाएगा ही नहीं। यस और नो? यस। तो ये प्रिंट क्या करेगा? पहले बॉडी टैग कैप्चरिंग ट्रू रखा हुआ है तो बॉडी टैग प्रिंट कर दिया, सॉरी। देन वो डीप टैग के अंदर आएगा तो डीप टैग फिर वो कैप्चरिंग में तो नहीं है, राइट? बट वो बबलिंग के Yes. टाइम में प्रिंट करेगा तो बॉडी एंड डीप प्रिंट करेगा। देखो बॉडी देन डीप, ठीक है। Yes, sir. अब मैं सपोज सेक्शन में क्लिक करूंगा तो क्या क्या प्रिंट होगा? तो खाली बॉडी ही प्रिंट होगा, बॉडी। राइट, क्योंकि और नीचे तो जाएगा नहीं है, ठीक है। अब मैं HTML में क्लिक करूंगा तो ऊपर वाला तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि वो नीचे जाएगा ही नहीं, कैप्चर कहाँ से होगा, राइट? क्लियर? Yes, sir. यस देखो सर। देखो मैंने सेक्शन में कोई इवेंट बाइंड नहीं किया, फिर क्लिक करता हूँ तो इवेंट तो प्रोपागेट होता ही है ऊपर से नीचे तक, बट जहां पे तुम बाइंड किए वहां पे खाली प्रिंट होता है। देखो सेक्शन में क्लिक किया, बट ये क्या होगा? इवेंट तो आता है, HTML से आया, बॉडी, बॉडी से सेक्शन तक पहुंचा, बट सेक्शन से फिर ऊपर चला गया और नीचे नहीं आया, बट सेक्शन में कुछ है नहीं इसलिए प्रिंट कुछ नहीं किया, राइट? क्लियर? तो कहाँ पे प्रिंट क्लिक करते हो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो आपको पता चलता है कि इवेंट कैसे प्रोपागेट होके यहाँ तक आता है, ऊपर तक जाता है, फिर जहां जहां पे इवेंट बाइंड करके रखे हुए, फंक्शन बाइंड करके रखा हुआ है, इवेंट बाइंड करके रखा हुआ है, एंड द फंक्शन bind to that event will be called, but it is also controlled by the flag. Second parameter, first parameter is the, sorry, third parameter, first parameter is the event name, second parameter is the callback, third parameter is the flag, which control whether capturing is false or true, and by default this flag is false, means capturing false, always bubbling will work, ठीक है। अब स्टॉप प्रोपागेशन, सॉरी स्टॉप प्रोपागेशन मेथड, जैसे मैंने बताया कि स्टॉप प्रोपागेशन करेंगे तो वो जो इवेंट प्रोपागेट क्या करता है, इवेंट स्टार्ट प्रोपागेटिंग फ्रॉम आउटर मोस्ट एलिमेंट टू इनर मोस्ट एलिमेंट। इनर मोस्ट मींस जहां पे तुमने क्लिक किया, and again it revert back from innermost element to outermost element. So to stop this propagation, because ये देखो आपको पता चला ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखो कुछ भी प्रिंट हो जाता है, सब कुछ कॉल हो जाता है, मुझे वो करना नहीं है, आई डोंट वांट दिस। ये प्रोपागेशन बंद करना है मुझे। जैसे डिफॉल्ट बिहेवियर बंद करने के लिए प्रिवेंट डिफॉल्ट फंक्शन कॉल किया मैंने, हियर आई डोंट वांट टू प्रोपागेट इवेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, ओके। तो मैं क्या किया, सपोज ये बाय डिफॉल्ट सब में फॉल्स ही है, ठीक है। नाउ कैप्चरिंग फॉल्स, सो एट द टाइम ऑफ कैप्चरिंग नो फंक्शन विल बी ट्रिगर्ड, बट एट द टाइम ऑफ बबलिंग सब फंक्शन कॉल होगा। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो पहले बटन, फिर डी, फिर बॉडी, बटन डी फिर बॉडी, क्लियर? क्योंकि मैं बबलिंग के टाइम में ही कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि कैप्चरिंग फॉल्स कर दिया सबका, क्लियर? बट मुझे क्या करने का, I don't want the div and button should print, or the event should not propagate from button to top. ये button के बाद जो div and body call हो रहा है, I don't want that. Then what I'll do, I'll just enable one function, sorry, I just call one function who is of course inside the event object like this. Sorry, ये div में नहीं करना है मुझे, कहाँ पे करना है इसको? I just want it इन बटन। जैसे बटन के पास पहुंचूंगा मैं, तो बटन के बाद मैंने क्या किया, प्रोपागेशन बंद कर दिया, राइट। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले तो कैप्चरिंग हो रहा है, बट मैं प्रिंट कर रहा हूँ एट द टाइम ऑफ बबलिंग, ये क्लियर? बट बबलिंग के टाइम आई डोंट वांट, सॉरी, इन एट द टाइम ऑफ बबलिंग आई डोंट वांट the event to bubble from innermost to outermost. So मैंने क्या किया, बबलिंग के टाइम
ये फंक्शन कब कॉल होगा? बबलिंग के टाइम। तो बबलिंग के टाइम में प्रोपागेशन बंद कर दिया मैंने, मीन्स कैप्चरिंग तो होगा, ऊपर से यहाँ तक इवेंट आ जाएगा, बट यहाँ से और ऊपर नहीं जा पाएगा, राइट? तो ये क्या करेगा? खाली बटन प्रिंट करेगा, देन और कुछ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये इवेंट प्रोपागेट होके अगेन ऊपर बबलिंग हुआ ही नहीं, क्योंकि बबलिंग ये बटन के ऊपर फॉल्स कर दिया, तो बटन के बाद आगे नहीं जाएगा, राइट? For example, I want to enable this. Let me comment this. I want to enable this propagation, stop propagation from div, from here, right? Then क्या होगा? ना इवेंट भी प्रिंट होगा, सॉरी बटन भी प्रिंट होगा एंड div भी प्रिंट होगा, बट इसके बाद बॉडी प्रिंट नहीं होगा। देखो, पहले बटन प्रिंट हुआ, फिर div प्रिंट हुआ, क्योंकि बबलिंग के टाइम में मैं कैप्चरिंग कर रहा हूँ, राइट? बबलिंग के टाइम में मैं इवेंट ट्रिगर करवा रहा हूँ, फंक्शन कॉल करवा रहा हूँ, राइट? तो बबलिंग स्टार्ट होगा जब div के पास पहुंचेगा, देन इट विल स्टॉप प्रोपागेशन। तो div में प्रिंट कॉल तो हो गया फंक्शन, और वो फंक्शन के अंदर मैंने क्या कोड लिखा? आई जस्ट राइट द कोड टू स्टॉप द प्रोपागेशन। देन वो बॉडी के पास फिर ऊपर जाएगा ही नहीं। समझ में आ गया स्टॉप प्रोपागेशन कैसे काम करता है? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, आप समझ पाओगे कि ये मुझे समझ, ये ऐसे इवेंट बाइंड किया हुआ है, and if I just write the stop propagation inside a specific function, then कहाँ पे ये propagation stop कर देगा एंड कहाँ पे ये कॉल होगा, ये पता चल गया आपको, राइट? अभी Yes, सपोज sir. मैंने Yes, क्या sir. किया, ये div है, और div में मैंने क्या किया, ये कैप्चरिंग ट्रू कर दिया, मीन्स कैप्चरिंग के टाइम में फंक्शन कॉल करूंगा, और यहाँ पे स्टॉप प्रोपागेशन किया, देन क्या होगा? कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। क्यों? सॉरी, div तो क्लिक होगा ही। अब क्या प्रॉब्लम हुआ? अभी इसमें div में मैंने क्या किया? स्टॉप प्रोपागेशन किया, यहाँ पे कैप्चरिंग ट्रू, सॉरी मैंने कहाँ पे डाल दिया? हाँ, div में डाला, राइट? और बटन में कैप्चरिंग ट्रू रखा हुआ है, और इसमें कैप्चरिंग के टाइम ये स्टॉप प्रोपागेशन किया, तो ये होना नहीं चाहिए। हाउ कम? div is clicked, false, capturing false, div में कैप्चरिंग ट्रू रखा हुआ है, राइट? ओके, so it should not be called. How it called? I don't know. Okay, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया पहले, when I click on the button, then what happen? Capturing starts, so body tag आएगा, so body tag में मैंने capturing में false रखा हुआ है, right? And यहाँ पे बटन में भी कैप्चरिंग में false रखा हुआ है, so बॉडी टैग में कुछ प्रिंट नहीं होगा, सेक्शन में कुछ भी नहीं होगा, राइट? देन div में पहुंचेगा, तो div में भी फॉल्स रखा हुआ है, नहीं, div में ट्रू रखा हुआ है, True है. तो कैप्चरिंग के टाइम में div is clicked, ये प्रिंट होगा। इसके बाद बटन के पास पहुंचेगा ही नहीं वो, हाँ, तो div is clicked, वो div is clicked ही मिलेगा, राइट? बट ये सपोज मैं फॉल्स कर दूंगा, मैं यहाँ पर इफ आई मेक इट फॉल्स, देन क्या होगा? कैप्चरिंग के टाइम सब में फॉल्स कर दिया मैंने, यस और नो? तो बबलिंग के टाइम में होना चाहिए, बट मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ये कैप्चरिंग के टाइम कॉल हो रहा है, div में क्या होगा? अब क्लिक करूंगा, तो पहले ये कैप्चरिंग के टाइम किसी में भी नहीं है, ना बॉडी में है, ना div में है, ना बटन में है, राइट? बट जैसे बबलिंग स्टार्ट हुआ, तो बटन प्रिंट होगा, div प्रिंट होगा, एंड प्रोपागेशन बंद हो जाएगा, राइट? ठीक है, तो प्रोपागेशन इज क्लियर।
कैसे प्रोपागेशन को हम कहाँ पे स्टॉप करते हैं, कौन सी टाइम में स्टॉप करते हैं ताकि वो नेक्स्ट प्रोपागेशन बंद कर देगा। जैसे ऊपर से आते टाइम मैंने ब्लॉक कर दिया, देन वो आगे कुछ प्रिंट ही नहीं करेगा, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे सपोज बटन बॉडी में स्टॉप प्रोपागेशन कर रहा हूँ और कैप्चरिंग में ही रख रहा हूँ। किस में रख रहा हूँ? कैप्चरिंग 2 रख रहा हूँ, मतलब कैप्चरिंग के टाइम ये कॉल होगा फंक्शन, राइट। क्लियर? अभी बॉडी टेक पे पास जब कैप्चरिंग स्टार्ट होगा तब भी प्रोपागेशन स्टॉप हो जाएगा। तो क्या प्रिंट होगा? और मैं क्लिक कर रहा हूँ बटन के ऊपर, तो खाली बॉडी प्रिंट हुआ, उसके आगे कुछ प्रिंट हुआ ही नहीं, है ना। क्योंकि प्रोपागेशन मैंने क्या किया कि ओनली बॉडी जब प्रोपागेशन कैप्चर हो रहा होगा एंड बॉडी के पास पहुंचेगा तो प्रोपागेशन स्टॉप हो जाएगा, राइट। तो ये प्रोपागेशन HTML देन बॉडी यहाँ तक आएगा और ना अंदर आएगा ना बबलिंग होगा, कुछ नहीं होगा, तो वहां पे बॉडी के पास आके रुक जाता है। क्लियर? Yes, sir. तो इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो बता सकते हो आप लोग। Yes, sir. ये एग्जांपल थोड़ा प्रैक्टिस करना तो आपको ज्यादा आइडिया आ जाएगा हाउ इवेंट प्रोपागेट्स इनसाइड HTML एलिमेंट और डॉक्यूमेंट, इनसाइड HTML डॉक्यूमेंट फ्रॉम आउटरमोस्ट टू इनरमोस्ट। इनरमोस्ट मतलब जहां पे तुमने क्लिक किया हुआ। क्लियर? सो टुमारो विल अंडरस्टैंड डायनेमिकली कैसे इवेंट ट्रिगर करवाना है एंड दिस कैसे काम करता है। In DOM element, in case of DOM element and event. Okay. Now these are very simple thing. The complex thing I just explained you today. So it is you don't have to worry about the next one. So ये समझ में आ गया, then you can answer to any questions, any critical question in the event easily. Clear? Okay, let's conclude. We'll talk tomorrow. अब 2 चैप्टर। Yes. सर एक्चुअली मैं मेरा असाइनमेंट में ग्रुप में नहीं था तो इसलिए मैं स्मिथ सर को ही सेंड किया था, तो बट से अभी तक वो सेंड ही नहीं किया मेरा। हाँ तो ग्रुप में मैसेज करो कि आई वांट टू सबमिट माय असाइनमेंट व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके Okay, so somebody Okay. will talk to you. ओके सर।